Hello and welcome to eVidya channel. I am Achal Sharma and we are going to start fifth part of spoken English, basics of spoken English. And it was the last episode of tenses. We already done present, indefinite present, continuous present, perfect and present, perfect continuous. And now onwards, we will be doing simple past tense, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Before that, I want to revise that you have to remember we need flow, continuity, no hesitation, one word, repetitions, or learning of imperative sentences, less sentences, and exclamatory sentences. This you have already done. One word, thanks, sure, yes, etc. And imperative sentences. Do it. Open the door. Go there. Come here. And past this exclamatory sentences. How beautiful the flower is. What a wonderful scene. Or how pretty the flower is, how pretty the child is, how pretty. And let's go out, let's sing, let's enjoy, let's go to the market, let's watch movie. So these sentences will remove your hesitation. At the same time, you will be having flow or continuity or attitude or aptitude of spoken English will be there. Now today we will be doing simple past tense, past continuous, past perfect continuous. Similarly, future tenses, all the 8 tenses together to complete the 10th episode. Now, simple past tense. This is a tense where we use second form of verb. We played, we sang, we went to the garden, we went to the market. So second form. But if did is used, did you go there? Then first form. Did you go? Did you went? नहीं होगा. Did you go? क्या आप गए? क्या नहीं? अगर नहीं गए, didn't या did not. I did not go there. I did not go to the market. I did not go to school. So did not. Then past continuous was were. V1 plus ing ing. We were playing in the garden. We were playing hockey. We were going there. I was doing my work. Were you doing your work? तो इसमें क्वेश्चन में वर्ब बाहर आ जाएगा शुरू में. और नॉट लगाना हो तो we were not playing. We were playing. We were not playing. और इसी तरह से had. Past perfect. Had. P3 is used. वर्ब की तीसरी फॉर्म होती है. हमेशा ये सारे जितने परफेक्ट टेंस हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें सेकंड फॉर्म आ रही है. बाकी सारों में फर्स्ट फॉर्म है या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग लगेगा. We had played, we had won our match, they had won their match. था, चुका था, कर लिया था, पढ़ लिया था, जीत लिया था, ये सारे इसमें आएंगे. और ये डबल सेंटेंस भी होता है. वैसे कुछ और टेंसेस में भी डबल सेंटेंस होते हैं पर इसमें जैसे मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी चल चुकी थी. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. सेकंड फॉर्म साथ में आधा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में या सिंपल पास्ट में चला जाएगा. द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन. द बेल हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड द स्कूल. रीच्ड द स्कूल सेकंड फॉर्म. तो आधा जो सेंटेंस है इसमें होगा, आधा इसमें चला जाएगा. देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस हैड बीन. तो सिंस फॉर वैसे ही लगता है. सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 PM, सिंस 2 जनवरी और सिंस 2 अक्टूबर. वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग. वी हैड बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. प्रेजेंट हो तो हैज बीन, पास्ट हो तो हैड बीन और ये है तो
विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फ्यूचर जो है विल हैव बीन, शैल हैव बीन लग जाएगा, बाकी कोई फर्क नहीं है इसमें। सिंस फॉर का प्रयोग है, सारे एक जैसे ही। और विल हैव बीन, शैल हैव बीन, नॉट लगाना, नॉट यहाँ भी लग सकता है, नॉट यहाँ भी लग सकता है। विल नॉट हैव बीन भी हो सकता है, विल हैव नॉट बीन भी हो सकता है। और क्वेश्चन है तो विल अकेले को बाहर उठा देना है, विल या शैल को, आई हुई के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। ये इकट्ठे मैंने करवा दिए हैं। हैड बीन और सिंस फॉर का यूज होता है, वी हैड बीन प्लेइंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, वर्षा हो रही थी सुबह से। इसमें साथ में टाइम होता है, इसमें कोई टाइम नहीं है। जो कंटिन्यूस है उसमें टाइम नहीं दिया गया, इसमें टाइम है, तो ये अपने आप हैड बीन वगैरह बन जाता है। इसमें पैसिव वॉइस नहीं बनते, ऑलरेडी हैड बीन है तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस में ही रहेगा ये, या पैसिव वॉइस ऑलरेडी फॉर्म पैसिव वॉइस की ही है ये। कुछ लोग इसको एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर विल भी, शैल भी, ऑलरेडी शैल भी लग गया है, तो इसमें इसका भी नहीं होगा पैसिव वॉइस। तो 4 टेंसेस में पैसिव वॉइस नहीं होता। फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये 4 टेंस जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है इसमें। सिंपल फ्यूचर में आई हुई के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल लग जाता है, सब्जेक्ट जितने भी हो। आई शैल प्ले, वी शैल प्ले, दे विल प्ले, यू विल प्ले। अकेला टेंस है जिसमें यू जो है, यू विल प्ले इसमें आ रहा है, आई हुई को छोड़ गया है, तो वो इनके साथ होता है ज्यादा। प्लूरल भी इधर आ रहे हैं इसमें, दे विल प्ले, यू विल प्ले, इन सब के साथ विल लगेगा, आई हुई के साथ शैल। और वैसे आजकल इंटरचेंज कर लेते हैं, कोई इतना फर्क नहीं है, पर अगर शैल का विल कर दो तो जरूर हो जाता है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जरूर जाऊंगा, स्ट्रेस हो जाता है। तो ऐसे ही विल प्ले, वो खेलेगा, ही शैल प्ले, उसको खेलना ही होगा, यानी वो जरूर खेलेगा। तो विल भी शैल भी इस तरह से इंटरचेंज भी हो सकते हैं, स्ट्रेस आ जाती है, पर वैसे भी आजकल इंटरचेंज कर देते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, पर ग्रामेटिकली इट विल बी रॉन्ग। ग्रामेटिकली यू हैव टू यूज शैल बी विद आई एंड वी, एंड विल बी विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं। शैल बी गोइंग, विल बी गोइंग वैसे ही बन जाएगा, ये भी V1 प्लस ING है। विल हैव गॉन, शैल हैव गॉन, तो इसमें जैसे इसमें डबल हुआ था, इसमें भी डबल हो सकता है। द ट्रेन विल हैव गॉन, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट आ जाता है इसके साथ। बिफोर आई रीच द स्टेशन, इसमें रीच द स्टेशन, इसमें रीच द स्टेशन, फर्स्ट फॉर्म। विल हैव, आई शैल हैव gone there before the bell rings, या the bell will have rung before I reach the school। तो जो लास्ट हाफ है हम उसको हाफ कर उसमें प्रेजेंट में ले जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपल प्रेजेंट में ले जाते हैं। ये विल हैव शैल है, तो विल हैव, मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चल चुकी थी, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ऐसे सेंटेंस। तो यहां पर है थी, यहां पर है होगी, बज चुकी होगी, तो बज चुकी होगी है, तो विल हैव रंग बिफोर आई रीच द स्टेशन, फर्स्ट फॉर्म। इसमें हैड रंग, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड, तो इसके साथ सेकंड फॉर्म आती है, इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है, सिंपल प्रेजेंट बनता है, ये सिंपल पास्ट बनता है, आधा सेंटेंस। देन विल हैव बीन, शैल हैव बीन मैंने बता दिया है, इसके साथ ही है, जैसा ही है। सिंस फॉर भी वैसा ही है, तो इट हैड बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, या फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, पक्का समय है, निश्चित है, एट द पॉइंट ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड टाइम, देन इट इज सिंस, कच्चा है, और इसमें जिसको कहते हैं इट इज नॉट स्पेसिफाइड particularly we can say it for 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 4 साल से, so that is not confirmed when it started, so it will have for many days, for 2 days, for 2 months, and here in case of since it is fixed time, specified time, to January,
2 October, 2nd October, 1960, 2010, like that. So these are the uh, sentences of these 8 tenses. So we have done all the 12 in installments. Hope you will enjoy it, learn it, have style, stylish English, try to speak stylish English with flow, continuity, and practice with one word, imperative, exclamatory, and letters, and weather sentences also. It is very hot today, it is very cold today, it is closed today, it is raining, like these sentences. So thank you, have a nice day and enjoy. And once again,